ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। All right, so we'll start from verse 19. माया जवनिका छन्नम अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम नालक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. Purport. Anyone wants to read? क्या लिखा है मुझे? Mm. In the Bhagavad Gita, Lord Sri Krishna affirmed that less intelligent person mistake him to be an ordinary man like us, and thus they deride him. The same is confirmed herein by Kunti. The less intelligent person are those who rebel against the authority of the Lord. Such persons are known as asuras. The asuras cannot recognize the Lord authorities. When the Lord, just a second, Babuji. When the Lord Himself appear amongst us as Ram, Narsimha, Vara, or in his original form as Krishna, He performed many wonderful acts which are humanly impossible. As we shall find in the 10th canto of this great literature, Lord Sri Krishna exhibited his humanly impossible activities even from the days of his lying on the lap of his mother. He killed the Putna witch, although she smeared her breast with poison just to kill the Lord. The Lord sucked her breast like a natural baby, and he sucked out very life also. Similarly, he lifted the Govardhan hill just as a boy picks up a frog's umbrella and stood several days continuously just to give protection to the resident of Vrindavana. These are some of the superhuman activities of the Lord described in the authoritative Vedic literature, like the Puranas, Itihas, uh, historic and Upanishads. He has delivered wonderful instruction in the shape of Bhagavad Gita. He has shown marvelous capacities as a hero, as a householder, as a teacher, and as a renouncer. He is accepted as the supreme personality of Godhead by such authoritative personalities as Vyas, Devala, Ashita, Narada, Madhava, Sankara, Ramanuja, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jeev Goswami, Vishwanath Chakravarti, uh, Bhakti Siddhanta Saraswati, and all other authorities of the line. He himself has declared as much in many places of the authentic literature, and yet there is a class of men which demonic mentality who are always reluctant to accept the Lord as the supreme absolute truth. This is partially due to their poor fund of knowledge and partially due to their stubborn obstinacy, which result from various misdeeds in the past and present. Such person could not recognize Lord Sri Krishna even when he was present uh, before them. Another difficulty is that those who depend more on their imperfect senses cannot realize him as the supreme Lord. Such persons are like the modern scientists. They want to know everything by their experimental knowledge, but it is impossible to know the supreme person by imperfect experimental knowledge. He is described here in Adoksaja or beyond the range of experimental knowledge. All our senses, all our all our senses are imperfect,
We claim to observe everything and anything, but we must admit that we can observe things under certain material condition only, which are also beyond our control. The Lord is beyond the observation of sense perception. Queen Kunti accept this deficiency of the conditioned soul, especially of the woman class who are less intelligent. For less intelligent men, there must be such things as temples, mosque, or church, so that they may begin to recognize the authority of the Lord and hear about him from the authorities in such a holy places. For less intelligent men, the beginning of spiritual life is essential, and only foolish men decry the establishment of such places of worship which are required to raise the standard of spiritual attributes for the mass of people. For less intelligent person, bowing down before the authority of the Lord, as generally done in the temple, mosque, or churches, is a beneficial as it is for the advanced devotees to meditate upon him by active service. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you. It's a long purport Srila Prabhupada has written. And अभी कुंती महारानी क्या बोल रही है इसमें कि being beyond the range of limited sense perception, right? So माया जवनिका छन्नम, तो माया से क्या हो जा रहा है, वो क्या बोल रहे हैं कि अब टॉपिक क्या चल रहा है कि वो प्रे कर रही है और वो बोल रही है कि कृष्णा, तुम्हें समझ पाना और तुम्हें देख पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और किसके लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए। कैसे? क्योंकि हमारे ऊपर किसका छन्नम है, किसका, किसकी कर्टन है, कर्टन ऑफ डिल्यूडिंग एनर्जी, माया का कर्टन है हमारे ऊपर, राइट। तो इसलिए, और क्या है दूसरा, दूसरा हमारे में क्या प्रॉब्लम है, हम वी आर फुलिश ऑब्जर्वर, मूढ़ दृशा, वी आर फुलिश ऑब्जर्वर। ठीक है, और तीसरा क्या बोल रहे हैं उसमें, अधोक्षजम, अधोक्षजम अव्ययम, ये बियॉन्ड द रेंज ऑफ मटेरियल कंसेप्शन। वो बोल रहे हैं कि हमारे जो फोर डिफेक्ट्स हैं, कौन से हमारे सेंसेस के जो चार डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे, याद है किसी को? Propensity to cheat. चीटिंग, हाँ, चीटिंग हाँ, प्रोपेंसिटी। हाँ, एक याद है। आपने तो अभी ताजा ताजा ऐसे सार ऐसे सार चल रहा होगा नहीं नहीं वहाँ। नहीं प्रभु जी, मुझे फिर भी देखो तो कुछ क्या याद है? नहीं है। हाँ, माइक्स, क्या? माइक्स थी ना उसकी शॉर्ट फॉर्म, MICS। हम्म। ऐसे याद रख, ऐसे याद कर लो, माइक, माइक्स। तो सी बोल दिया आपने, चीटिंग प्रोपेंसिटी। हम्म। और Uh, was one, and हाँ, imperfect senses, इम्परफेक्ट सेंसेस या और Perfect याद process है। फोर्थ। मेकिंग मिस्टेक्स। Making क्या, mistakes, ये yes. चार हो गए, मेकिंग मिस्टेक्स, आई से इल्यूजन, सी से चीटिंग प्रोपेंसिटी, और एस से सेंसेस विच आर इम्परफेक्ट। सो द सेम थिंग कुंती महारानी इज सेइंग कि यू आर बियॉन्ड द रेंज ऑफ मटेरियल कंसेप्शन। हम मटेरियली आंखों से, हम मटेरियल आंखों से आपको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कौन सी चाहिए, ट्रांसीडेंटल आइज चाहिए। उसमें है ना ब्रह्म संहिता में, प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचनेना, राइट। तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, विलोचनेना, बाय प्रेमांजना, प्रेम की ऑइंटमेंट, अंजन इज कॉल्ड काजल, है ना, काजल, प्रेम का काजल। अगर हम ऑइंटमेंट ऑफ लव इफ वी पुट इन अवर आईज, ओनली देन वी कैन सी द लॉर्ड, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू सी, राइट। और हम अपने, अब भगवान को देखना, हम कितने लोग देख पाते हैं, हम देख पाते हैं क्या भगवान को, बताओ, हम भगवान को देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, क्या लगता है हमें? हम तो ये डिवोटी बने हुए हैं अब। एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। लेकिन लेकिन भगवान ने चैप्टर भगवत गीता के चैप्टर 12 में बताया है कि सारी उनकी ऑपुलेशंस बताई है, तो उसमें छह छह तरीके से भगवान को हम देख सकते हैं। हाँ, वो सनलाइट, सन मून लाइट्स, हाँ, कुछ छह मैं भूल गया प्रभु जी, ऐसा कुछ है वो। हाँ, वाटर फायर, वो देखो, यानी वो भगवान का क्रिएशन है, तो हाँ, हाँ। हाँ। सो वही बोलते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो इट डिपेंड्स कि कौन, कौन देख रहा है, राइट।
और उसकी कॉन्शियसनेस क्या है बंदे की, जो कृष्णा की बात कर रहा है। तो कैन वी एटलीस्ट सी द हैंड ऑफ गॉड इन अवर लाइफ, यस और नो, है ना। तो इट डिपेंड्स कि हमारी भक्ति का क्या स्टैंडर्ड है, हमारी भक्ति का क्या लेवल है। अभी आ, आ, जब हम इंडिया गए थे तो मम्मी की ना टिकट बुक हमने ना 5th या 6th सितंबर को हमने मम्मी की वो टिकट बुक करवाई होगी जगन्नाथपुरी धाम की जाने की। और 16 सितंबर को वो बीमार हुए हैं और 22 अक्टूबर को उनकी डेथ हुई है। तो वहां पे जाके हमने बुक करवाई टिकट, तो कि सब सही है, तो विल गो अकॉर्डिंग टू द प्लान। बट वो ऑब्वियसली नहीं जा हुआ, राइट। तो कोई भी नहीं गया। तो ये अब जिसको भी बात बताई वहां पर भी पता ही था, सबने कहा अरे यार बुरा हुआ है ना कि नहीं लिखा था जाना, धाम यात्रा नहीं हो पाई। ठीक है। एंड इवन आई वॉज ऑल्सो, मेरा भी सेम ही ओपिनियन था कि हाँ यार मतलब धाम यात्रा नहीं हो पाई, मतलब एक जा आते धाम पे जा आते और वो सब, और टिकट भी बुक थी। तो ये बात आके जय सची प्रभु से मिला मैं यहाँ पे, तो दीपदान पे, तो उनको बताई। तो उन्होंने बोला, ऐसी बातों बातों में बात बताई कुछ चली थी जब, तो कुछ तो उन्होंने बोला कि कहते बेटा टिकट तो कटवाई थी और वो वहीं पर गए। आई वॉज वाओ, आई थॉट, देखो सोचने का नजरिया वहां पे, मैं जितने भी लोगों से मिला और मेरी खुद की भी कंसेप्शन यही थी कि हाँ भाई नहीं गए हैं। बट ही सेड कि क्योंकि तुमने जगन्नाथपुरी धाम की टिकट कटवाई थी, सो शी वेंट देयर। मेरे को थोड़ा टाइम लगा डाइजेस्ट होने में, बट मुझे थोड़ी समझ में आ गई बात। ठीक है। एंड वेरी स्ट्रेंज थिंग, अभी कल मैं सर्विस के लिए गया था वेंसडे। तो कल वहां मुझे प्रभाव प्रभु मिले। उनसे भी ऐसी बात स्टार्ट हुई थोड़ी। तो उन्होंने, उनको भी ऐसी बातों बातों में निकली कि ऐसे ऐसे धाम यात्रा पे जाना था तो टिकट करवाई थी। मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं बोला कि मैं इनका, मैं मेरे को इनसे आंसर चाहिए कुछ। बट जैसी मैंने ये बात बोली, ही कट इन बिटवीन एंड ही सेड तो टिकट कटवाई थी सो शी वेंट देयर। आई सेड वाह। आई सेड प्रभु, जैसा जी प्रभु ने भी यही बात बोली थी मुझे। एंड ही ऑल्सो सेड द सेम थिंग। एंड देन ही एडेड वन मोर लाइन, ही सेड कि बिकॉज हर इंटेंशन was to go there, that's why you booked the ticket. Her intention was to go to Jagannath Puri and that's why you booked the ticket. So desire तो भगवान, ये हमें पता है, ये तो बच्चे को भी पता है कि भगवान आपकी सारी डिजायर्स पूरी करते हैं, मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल तो खासकर करते ही करते हैं। तो आई वॉज लाइक वाओ, two different people at two different times said the same thing promptly, immediately, right? And this is their consciousness, this is how they see premanjana chorita bhakti vilochanena, because their level of bhakti is there, they can see Krishna, whereas mudha drisha like us, we cannot see. This is the difference। यही कुंती महारानी यहाँ पे बोल रही है कि हम जैसे लोग, और जबकि कुंती महारानी इज नॉट लाइक दैट। कुंती महारानी को तो पता है कि ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, दैट्स व्हाई शी इज ग्लोरीफाइंग हिम, दैट्स व्हाई शी इज प्रेइंग, राइट। बट स्टिल शी इज सेइंग कि हमारी लिमिटेड सेंस परसेप्शन है। हमारी परसेप्शन यही थी कि नहीं जा पाए, धाम यात्रा नहीं हो पाई। वेयर एज जो ऐसे लोग हैं उनकी परसेप्शन देखो, उनके वर्ड्स देखो कि नहीं, बिकॉज यू हैड दैट इंटेंशन, यू बुक द टिकट, यू वेंट देयर एंड नॉट टू दिस वन, टू द एक्चुअल वन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, बिकॉज शी हैड दैट डिजायर इन हर लास्ट टाइम, राइट। तो दैट दैट इज द डिफरेंस। दिस इज व्हाट कुंती महारानी इज सेइंग हियर। ठीक है। तो ये डिफरेंस कैसे आता है? बाय क्वालिटी ऑफ आवर भक्ति। तो जो क्वालिटी हम कर रहे हैं जिस भक्ति से, उसमें हमारे हमें ना भगवान का हाथ दिखेगा ना हमें विजिबली भगवान दिखेंगे। वेयर एज जो लोग अच्छी क्वालिटी की भक्ति कर रहे हैं, दे कैन सी कृष्णा। दिस इज सीइंग कृष्णा, राइट। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, दिस इज सीइंग कृष्णा, एज गुड एज सीइंग कृष्णा। और हमारे जैसे क्या है, हमारे जैसे को तो बोलने के बाद भी फेथ नहीं होता। मैं उसके बाद भी आके घर पे साक्षी कर रहा हूँ, मैंने साक्षी ऐसी उन्होंने ना खुश करने के लिए कहा होगा।
तो मैंने कहा यार, फिर बाद में खुद पे ही आता है कि यार हमें फेथ भी नहीं है। जो वैष्णव बोल रहे हैं, इतने सीनियर वैष्णवास बोल रहे हैं, उनकी बातों पे भी विश्वास नहीं है। तो लुक एट आवर सेल्स, आई मीन, ठीक है, हम उसमें भी हम कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। ये इट ऑल बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ गुड क्वालिटी भक्ति। एंड सेकेंडली बाय माया। माया जवनिका छन्नम। दूसरा, हम वी आर वेरी वेरी डीपली कवर्ड बाय माया। ठीक है, वी कैन ओनली सी द इमीडिएट कॉज। हम हमेशा इमीडिएट कॉज देखते हैं चीजों का। वी कांट गो बियॉन्ड दैट। हमें एक्चुअल कॉज और पीछे क्या चल रहा है, भगवान का हाथ है क्या है, वी आर नॉट कंसर्न, हमें पता भी नहीं चलता है। तभी हमें क्या बोला गया है, मूढ़ दृशा। ठीक है, इनविजिबल रहता है। किनको इनविजिबल? ना लक्ष्य से। ना मीन्स नॉट, नॉट लक्ष्य से, नॉट ऑब्जर्व्ड। वी कैन नॉट ऑब्जर्व, वी डू नॉट, वी कैनॉट एक्सेस कृष्णा बिकॉज वी आर मूढ़ दृशा बाय द फुलिश ऑब्जर्वर। फुलिश ऑब्जर्वर्स कैनॉट डू दैट। और ये मूढ़ा वर्ड्स इज वेरी कॉमन। भगवत गीता में भी भगवान ने कितनी बार बोला है वो, है ना? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनु मानुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अजानतो माम भूता महेश्वरम। अवजानन्ति माम मूढ़ा मीन्स अवजानन्ति। अब इसमें दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा पहले बोला है, फिर नीचे क्या बोला है, परम भावम अजानतो। अब इसमें चैतन्य चरण प्रभु ना, इसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। थ्री तनुम आश्रितम। जब मैं मनुष्य की फॉर्म, जब मैं डिसेंड करता हूँ, तब जो फुलिश हैं, मूढ़ा मूढ़ा लोग क्या हैं, वो मुझे डिराइड करते हैं। अवजानंती का मीनिंग बता रहे थे संस्कृत में कि जानते हुए भी अनजान बनना, काइंड ऑफ। अजानंती इज फाइन। अजानंती इज यू डू नॉट नो, राइट? जानती इज यू नो। अवजानंती इज जान के भी अनजान, राइट? और वी आर, स्पेशली आई एम इन दैट कैटेगरी, अवजानंती, कि हमें जानते हैं। अब तो पहले तो ठीक है जी, हमें फिलोसफी नहीं पता थी, ये कुछ नहीं पता था। तो अब तो सब कुछ पता होते हुए भी स्टिल वी आर नॉट फॉलोइंग इट, सो दिस इज अवजानंती। वो ऑफेंस भी आता है ना, वो कौन सा, एट्थ है या टेंथ? टेंथ ऑफेंस है। टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट्स इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर। We are daily listening and reading so many instructions on this matter. Still, we maintain material attachments. Still, we do a lot of things which we are not supposed to do. So that is avjananti. अब avjananti माम मूढ़ा, those are मूढ़ा, right? Same thing is present here के मूढ़ दृशा is जो foolish लोग हैं, they cannot observe. So as long as we are avjananti and we are foolish, we will not be able to see the Lord. प्रभुपाद इसमें एग्जांपल देते थे। उनका लेक्चर सुन रहा था मैं, तो वो बोल रहे थे कि ब्लाइंड मैन, अब एक ब्लाइंड मैन को, फुलिश मैन है ना, ब्लाइंड मैन, उसको तुम हाथी दिखाओ, उसको तो देख नहीं पाएगा। उसको फील करेगा हाथी को, और वो क्या बोलेगा, दीज आर द कॉलम्स, ये कोई कोई बिल्डिंग है, ये कुछ बहुत बड़ी कोई चीज है, राइट? ही विल नॉट बी एबल टू सी द एलिफेंट। ठीक है, सिमिलरली वो डॉक्टर फ्रॉग की फेमस एग्जांपल। अब डॉक्टर फ्रॉग क्या कहता है, वो उसको कोई बोलता है कि अटलांटिक ओशन बहुत बड़ा है, तो वो डॉक्टर फ्रॉग क्या बोलता है कि कितना बड़ा है, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, कहाँ तक जाएगा? वो फीट में ही बात कर सकेगा, राइट? इससे ऊपर नहीं कर सकेगा वो। तो दीज आर मूढ़ा। सो मूढ़ा, हाउ कैन वी ऑब्जर्व लॉर्ड which is I mean too big, beyond our perception, right? Irreproachable, beyond perception. These are all the words which Kunti Maharani is saying, राइट? तो कैसे भगवान को कैसे समझा जा सकता है? ओनली बाय हिज मर्सी एंड बाय भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति। सो यहाँ पर वर्ड आ रहा है जानाति, राइट? तो भक्त्या माम, सिर्फ भक्ति से कृष्ण भगवान को जाना जा सकता है, और किसी तरीके से नहीं, राइट? अब नेक्स्ट क्या आ रहा है उसमें, नटो नाट्य धरो यथा। नटो नाट्य
धरोधरा। इसका मतलब क्या है कि अब वो क्या बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली एज एन एक्टर ड्रेस्ड एज अ प्लेयर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ब्रदर या हमारे फादर कोई किंग बन के आए हो उसमें, किसी प्ले में, विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज, राइट? मेकअप होगा, हैवी मेकअप हो, और वी विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज। सो द पॉइंट इज, अब कृष्णा हमारे सामने आते भी हैं, अगर आ भी जाएं, विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम? नो। एज अ 16-year-old बॉय, एज अ 5-year-old बॉय, बाल कृष्ण अगर आए हमारे सामने, क्या हम उनको पहचान पाएंगे? वेरी लेस लाइकलीहुड, राइट? बट कुंती महारानी के भी वो कैसे आए हैं? एज अ रिलेटिव। उनका क्या थे? वो नेफ्यू थे, उनके मामे का लड़का था, राइट? मामे का, हाँ। अ, उनके भाई का लड़का ना। हाँ। तो उनकी बुआ हुई, तो एज अ नेफ्यू आए उनको, बट शी recognized हिम, एंड स्टिल आउट ऑफ ह्यूमिलिटी शी इज सेइंग कि नो वन कैन कैन ऑब्जर्व यू, कैन सी यू, राइट? तो वेयर एज जो एलिवेटेड पर्सनैलिटीज हैं, दे कैन फील देयर प्रेजेंस। लाइक शिला प्रभुपाद जब लेक्चर्स देते थे, कितनी बार वो बोलते थे कि देखो, नारद मुनि आए हैं लेक्चर सुनने, देखो शिव जी आए हैं स्वयं मेरा लेक्चर सुनने, यहाँ पे यहाँ बैठे हैं, ठीक है? तो बट वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट अनलेस दिस माया माया अवच्छन्नम, जब तक ये माया का पर्दा, माया का कर्टन हमारे नहीं हटता है, राइट? और वो हटेगा भक्ति करके। और वो यहाँ परपोर्ट में भी प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कितने सारे अवतारों में आए हैं, और कितने क्या क्या काम किए हैं, ह्यूमनली इम्पॉसिबल काम किए उन्होंने, राइट? कृष्णा ने आके क्या क्या काम करे हैं, फिर भी एज अ बेबी उन्होंने कितना पूतना को मार दिया, क्या क्या कर दिया, फिर भी जो असुर हैं, दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज। वो उन्होंने ये बोला, रहे तो मायावादी था कोई, बस कोई कोई माया, इसको माया आती है, ही हैज सम, ही नो सम मैजिक ट्रिक्स एंड दैट्स इट, राइट? वेयर एज, और कुंती महारानी क्या बोल रही है कि खाली मैं ही नहीं ये बोल रही हूँ कि यू आर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कितने सारे और महर्षि भी हैं, व्यासदेव, असित, नारद, माधव, शंकरा, रामानुजा, चैतन्य महाप्रभु and Goswamis, yes, they all know that you are supreme personality of Godhead, right? तो इतने इम्पॉसिबल टास्क जो किए हैं उन्होंने, तो उनको हम एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? और वो हमारी लाइफ में भी अगर आप देखो, हमारी लाइफ में भी वो हमसे बहुत सारे इम्पॉसिबल टास्क करवा देते हैं, या बहुत इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा तो कई ऐसे मिरेकल्स करवाते हैं हमसे, बट स्टिल हम क्या करते हैं, उसका क्रेडिट हम किसको देते हैं? अपने आप को। ये देखो, ये तो मैंने किया, ये तो मैंने किया प्रभु, देखो कितना अच्छा काम किया मैंने। बट जो बुरा काम होता है, वो कृष्णा ने किया। अभी चैतन्य चरण प्रभु का लास्ट लेक्चर यही था ना, उन्होंने कहा था कि गिव कृष्णा credit for the good things which are happening in your life, and take the credit of the bad things which have happened। जो गलत चीजें हो रही हैं वो तुम्हारी वजह से हो रही हैं, और जो अच्छी चीजें हो रही हैं वो कृष्णा की वजह से हो रही हैं। वेयर एज जब अच्छी चीजें होती हैं, मुझे तो खासकर ध्यान भी नहीं आता उस टाइम, तो अपना ही कॉलर ऐसे ऊपर जाता है कि देखो मैंने किया है ये, ठीक है? जब बुरी चीज होती है, हाँ भगवान ने किया, कृष्णा इज नॉट हैप्पी विद मी, है ना, ये कृष्णा ने किया होगा ये। right? Whereas Krishna never ever does bad, और गलत चीज कभी नहीं करते वो, राइट? उस दिन जैसे ची प्रभु इसी पे ही एक स्टोरी सुना रहे थे, बोल रहे थे अकबर और बीरबल की एक बार बात हो रही थी, तो अकबर ने बोला कि क्या तुम बोलते रहते हो कि जो कृष्णा जो भी करते हैं सही करते हैं, ये मैं नहीं मानता इस बात को। बीरबल कहता मत मानो, पर दिस इज अ फैक्ट। तो एक बार क्या हुआ, वो अकबर अपनी तलवार की धार ना तेज कर रहा था, तो तेज करते करते उसने ऐसे तेज करते करते ना उसकी ऐसे उंगली कट गई, पूरी उंगली कट गई उनकी। तो उन्होंने बीरबल को बुलाया, कहते बीरबल देख, ये देख मेरी उंगली कट गई पूरी की पूरी, अब बता, जो अब वो लाइन बोल दोबारा कि कृष्णा ने जो किया अच्छा किया। कहता कृष्णा ने जो किया अच्छा किया, उसको उठा के जेल में डाल देते, कहता डालो इसको जेल में, ये गलत बकवास करता रहता हर टाइम।
इसको अंदर डालो। उसको डाल दिया जेल में। चलो जी, हो गया। तो थोड़े दिनों बाद ऐसे ही अकबर वहां गया हंटिंग करने। तो हंटिंग करने गया तो वो अपने ग्रुप से अलग हो गया। तो जब ग्रुप से अलग हो गया तो वहां पे भूखा प्यासा वो कहीं पर भटक रहा था। तो उसको कुछ ना आदिवासियों ने पकड़ लिया। अब आदिवासियों ने पकड़ के उसको बांध दिया बेहोश करके। और फिर उसकी वो सेक्रीफाइस देने लगे थे, ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो जैसे ही उसको वो ऐसे काटने लगे, अकबर की वो मूर्छा खुली और उसने हाथ ऐसे किया। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो डिफेक्टिव पीस है, इसकी उंगली कटी हुई है। तो हम इसकी बलि नहीं दे सकते, हमें तो प्रॉपर पूरी बॉडी चाहिए। ये तो डिफेक्टिव पीस की बॉडी नहीं, हम सेक्रीफाइस नहीं हम देंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। एंड एंड वो बच गया। राइट। तो वापस आया अपने महल जैसे भी करके। तो आके उसने फिर बीरबल को बुलाया। उसने बोला कि बीरबल, तू सही कह रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ तो मैं बच गया। कहते बट अब तेरे साथ कैसे अच्छा हुआ? तो अपने साथ अच्छा कैसे हुआ, ये कैसे बोल सकता है? तू तो जेल में, इतनी देर मैंने तेरे को जेल में डाला। तो वो बोलता, कहता महाराज, अगर मैं यहाँ ना होता तो मैं आपके साथ होता, और मेरी बॉडी पूरी ठीक थी तो मेरा सेक्रीफाइस हो जाता। इसलिए वट एवर कृष्णा डज इज फॉर इज गुड, इट्स नेवर बैड। राइट। तो अच्छी चीजों का क्रेडिट हमेशा कृष्णा को ही देना चाहिए, बिकॉज कृष्णा कभी गलत कर नहीं सकता। अगर बाय चांस हमें लग भी रहा है कि कुछ गलत है, कुछ गलत हुआ है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ अस। इन दैट केस लुक एट आवर सेल्स, अपना फॉल्ट देखो, कृष्णा का फॉल्ट मत देखो उसमें। अभी अर्जुन सखा प्रभु का ना फोन आया था इंडिया में, जब वैसे मम्मी की डेथ हुई। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा, प्रभु, मैं ना जिस टाइम पे डेथ हुई तो मैं प्रे कर रहा था वहां पे वृंदावन में कि प्रभु कृष्णा, और उस टाइम मैं इस्कॉन में ही था। तो मैंने कहा, मैं प्रे कर रहा था कि कृष्णा, अ, जो भी है अब मम्मी को ना, मतलब बस ठीक कर दो। और जो भी है इसको, जो भी अगर आपको कष्ट देने हैं ना, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में देना, इस लाइफ टाइम में मत दो। और तो अभी अभी के लिए खत्म कर दो, अगर आपको देने हैं तो नेक्स्ट टाइम लाइफ लाइफ टाइम में देना। तो एंड इफ यू लुक एट इट, ही हर्ड दैट प्रेयर, राइट। उन्होंने कष्ट खत्म हो गए, मतलब जो भी था थोड़ा बहुत वो, इट ऑल फिनिश्ड, एंड शी गॉट द नेक्स्ट बॉडी और वट एवर, राइट। तो मैंने कहा अर्जुन सखा प्रभु को, मैंने कहा, मैंने तो प्रे ऐसे करी थी कि वो ठीक कर दें और वो खत्म कर दें, उन्होंने तो वो खत्म कर दिया, तो उन्होंने वो नेगेटिव ले लिया। तो अर्जुन सखा प्रभु ने ये कहा, कहते कृष्णा कैन नेवर डू नेगेटिव, इन हिज बुक एवरीथिंग इज पॉजिटिव। कहते वो हमारी कंसेप्शन हो सकती है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बट वट एवर ही डज इज ऑलवेज 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 पॉजिटिव, राइट। सो that's the point. So Krishna cannot do bad things. And कुंती महारानी हियर इज वेरी, नीचे उन्होंने परपोर्ट में लिखा है कि कुंती महारानी इज एक्सेप्ट्स द डेफिशिएंसी ऑफ द कंडीशनड सोल्स, ऑल्दो स्पेशली ऑफ द वुमेन क्लास हु आर लेस इंटेलिजेंट। बट यहाँ पे परपोर्ट में स्पेशली उन्होंने, प्रभुपाद ने इसलिए लिखा है लेस इंटेलिजेंट, दैट कुंती इज नॉट लेस इंटेलिजेंट। ये नेक्स्ट वर्स में और भी आएगा कि जो भक्ति करता है वो लेस इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता है, राइट। सो कुंती महारानी is taking a humble position of a woman, but whereas she is a very elevated personality, right? So and again वही पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें परपोर्ट में भी, कि डिमोनिक मेंटेलिटी वाले लोग, they cannot accept Lord Krishna as the supreme absolute truth, right? So we can relate with them, and we cannot accept, we do not even accept whatever our Vaishnavas are saying. So that's all about it, I think. Yeah. Any points? Any questions? Any comments for this verse? Anyone wants to add anything? Prabhu, I want to add something. हाँ जी प्रभु। So I love the way you explained, like, Chaitanya Charitamrita Prabhu wala, Avijananti wala.
I remember it, but the way you explained it was amazing. I'm so fortunate to again hear you, you know, give Bhagavatam class. I'm very, very fortunate. I feel really enriched and enlivened. और आपने जो अपने experience बताया ना प्रभु, I think for me they were they were more valuable. I felt कि आपने जो अपना आंटी का एग्जांपल देके जो चीजें बताई है ना, I think that went straight into my head. और उससे मुझे एक और चीज समझ में आई है कि there are sometimes हम लोगों के साथ क्या होता है प्रभु कि हम लोग ना we listen to Prabhupada, है ना, हमें पता है Prabhupada is a pure devotee, but Prabhupada is Prabhupada. When Prabhupada says it, हमें लगता है कि हाँ ठीक है यार, Prabhupada is like, he's a pure devotee, he can say it. But when we hear from a devotee like yourself, जब आप बोल रहे थे, and I felt कि what, हाँ, it made sense because it's coming from you, it's coming from your experience. और उसमें आपने जो obviously शिला प्रभुपाद के को लिंक करके जो बोला, I really loved it. So thank you Prabhu for such an amazing class. Love it. Thank you. थैंक यू प्रभु। नेक्स्ट वर्स कर लेते हैं अभी, थोड़ा एक वर्स हो जाएगा और टेक्स्ट 20। तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्ति योगा विधांतरं अर्थं कथं पश्येम हे स्त्रिय। You yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service unto the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can we women know you perfectly? Purport. Anyone wants to read? मैं रीड करता हूँ प्रभु। Even the greatest philosophical speculators cannot have access to the region of the Lord. It is said in Upanishads that the supreme truth, the absolute personality of Godhead, is beyond the range of the thinking power of the greatest philosopher. He is unknowable by great learning or by greatest brain. He is knowable only by one who has his mercy. Other may go on thinking about him for years together, yet he is unknowable. This very fact is corroborated by the queen, who is playing the part of an innocent woman. Women in general are unable to speculate like philosophers, but they are blessed by the Lord because they believe at once in the superiority and almightiness of the Lord, and thus they offer obeisances without reservation. The Lord is so kind that he doesn't show special favor only to one who is great philosopher. He knows the sincerity of purpose. For this reason, only women generally assemble in great number in any sort of religious function. In every country and in every sect of religion, it appears that the women are more interested than men. This simplicity of acceptance of the Lord's authority is more effective than showy, insincere religious fervor. fervor. कृष्णा, थैंक यू प्रभु। अगेन छोटा सा पर्पट है लेकिन वेरी वेरी पावरफुल, इजंट इट? क्या अमेजिंग पर्पट लिखा है। अब वो कुंती महारानी क्या बोल रही है इसमें? तथा परमहंसम, ठीक है, पहले वो था यथा वर्ड आया था ऊपर, अब आया तथा। और वो क्या बोल रही है कि बिसाइड्स दैट द एडवांस्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स, परमहंस। अब परमहंस कौन होता है? हम सबको पता है, राइट? परम मीन्स परफेक्ट, और हंस क्या होता है? हंस जो जिसको दूध और पानी डाल के दो, वो उसमें से दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, राइट? तो ये जो इतने इतने मुनि हैं, अमलात्मा नाम, ये जो मुनि, द ग्रेट फिलोसोफर्स, ठीक है, अमल आत्मा नाम, दो अमल। अमल क्या होता है? अमल मीन्स मल, मल बेसिकली, राइट? मैल। तो जिनके अंदर कोई मैल नहीं है, अमल मीन्स नो, जो वैसी आत्माएं हैं जिनका माइंड्स आर कॉम्पिटेंट टू डिसर्न बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर।
तो जो कंप्लीटली जिनका मन गंदा नहीं है, जो मुनि हैं, ग्रेट फिलोसफर्स हैं, और जो परमहंस हैं, ठीक है, और who are purified by being able to discriminate between, how can, वो भी आपको ढंग से नहीं जान सकते, तो हाउ कैन वी वुमेन नो यू परफेक्टली, ठीक है। अब इसमें वुमेन को लेस इंटेलिजेंट बोला है ना, हमने भगवत गीता में भी देखा और भी जगह पढ़ा है ना, स्त्री शूद्र द्विज बंधु, ये तीनों को सेम लेवल पे लिखते हैं शास्त्रों में, स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु। द्विज बंधु क्या है? जो ब्राह्मण होन के घर में पैदा होने के बाद भी ही इज नॉट क्वालिफाइड, जो कि ब्राह्मणों के काम नहीं करता है, ठीक है। शूद्र वी ऑल नो, वो जो चार वर्ण बनाए, चातुर्वण्य मया सृष्टम, है ना, तो उसमें शूद्र जो है वो सबसे लेस इंटेलिजेंट माना जाता है, और स्त्री, सो ऑल आर ऑन द सेम लेवल बिकॉज दे डोंट हैव दैट क्वालिफिकेशन, यू कैन से। बट यहाँ पर प्रभुपाद कितना अच्छा परपोर्ट में लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि अ, हाँ, women in general are unable to speculate like philosopher, but they are blessed. See, women are blessed by the Lord because they believe at once in the superiority and almightiness of the Lord. अब मेरे जैसे कॉम्प्लेक्स आदमी को अच्छे से फिलॉसफी, तभी तो हम भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी जान रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीधे आके अगर कोई बोलेगा कि कृष्णा भगवान है, अरे जाओ, मेरे को नहीं पता भगवान कहाँ है, वो भगवान नहीं है, तो हमें पूरा समझाना पड़ता है, भाई सर्ग विसर्ग यहाँ से निकले थे, विष्णु की नाभि से निकले थे, पूरा वो सर्ग विसर्ग हमें समझाएंगे, अच्छा ऐसे है, तब जाके थोड़ा सा यकीन होना शुरू होगा। But women are so blessed. They are blessed by the Lord. तभी आप देखो, कहीं पे भी कॉन्ग्रीगेशन में देर आर मोर वुमेन देन मेन। बंदे इंटरेस्टेड होते ही नहीं है ज्यादातर, बहुत कम लोग जो मैन है वो इंटरेस्टेड होते हैं, और बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, इंटेलिजेंट। वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट। प्रभुपाद यहाँ पे उस पॉइंट को बेसिकली रिफ्यूट ही कर रहे हैं कि इंटेलिजेंट होंगे वो, फिलोसफर्स होंगे, बड़े बड़े इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन इट्स ऑल अबाउट ब्लेसिंग बाय द लॉर्ड, ठीक है ना। दे आर ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड so that they are simple, they immediately accept the superiority, and they offer obeisances without reservation। तो उनकी कोई reservation नहीं रहती, उनके कोई questions नहीं रहते, कोई माइंड में कोई डाउट नहीं रहता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड हेड। यस। तो और परमहंस क्या है? जो मेटीरियल और स्पिरिचुअल पार्ट को समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे फिलोसफी से वो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, हमारी सोल बॉडी ये सब करते रहो, लेकिन you won't be able to understand unless you are simple. This simplicity of acceptance of the Lord's authority is more effective than showing insincere religious fervor. Again, bombarded. Prabhupada is bombarding, right? वो बोल रहे हैं कि जो, तभी बोलते हैं ना कि भक्ति भक्ति इज वेरी सिंपल, इज वेरी सरल, और भगवान को क्या है? सरल सरल लोग पसंद है, सिंप्लिसिटी पसंद है भगवान को, रादर देन एक शोई इनसिंसियर रिलीजियस फर्वर एज कंपेयर टू, राइट। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि शोई होगा तो वो इनसिंसियर ही होगा, बट इसमें उन्होंने बोला कि शोई और इनसिंसियर। बट जनरली क्या होता है कि व्हेन वी ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, तो शोई थिंग्स, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं एसेंस हम भूल जाते हैं, राइट। तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो जब हम एसेंस भूल जाते हैं और हमारा फोकस किस पे रहता है? टास्क पे, कि टास्क कृष्णा को प्लीज करना है, स्टार्ट वो यहाँ से होता है कि आई वांट टू प्लीज कृष्णा, राइट। बट वो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम वी लूज अवर वे, और हम इतने ज्यादा टास्क ओरिएंटेड हो जाते हैं कि हम कृष्णा को कहीं भूल ही जाते हैं। तो हमें ये थोड़ा बैलेंस बना के चलना चाहिए कि at the same time we want to please Krishna, we want to put our best effort, but at the same time we need to keep things simple, right। जैसे हमारे भक्ति भिक्षा में भी बोलते थे, जब हमने स्टार्ट किया था तो जगन्नाथ राम प्रभु ने बोला था, उन्होंने बोला था कि कीप थिंग्स सिंपल, ठीक है।
कोई बहुत बड़े कीर्तनिया नहीं बुलाने हैं, कोई बहुत अच्छा ओपुलेंट फीस्ट नहीं देना है। बोले दे रहे हो तो इट्स गुड, बट इट विल नॉट बी अ सस्टेनेबल थिंग। ठीक है, वो कीर्तन थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, खाना थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, प्रसादम थोड़ी देर के लिए वो बढ़िया लगेगा, बट इट विल नॉट बी सस्टेनेबल। इसलिए डू सिंपल थिंग्स। ये उन्होंने मतलब वो आपने भी सुना होगा ना, जब वो देते हैं ट्रेनिंग, तो उन्होंने बोला कि सिंपल, कीप इट सिंपल। और वो चीजें दे विल नॉट टेक यू फर्दर, राइट। शोई चीजें आपको ज्यादा आगे तक नहीं लेके जाएंगे। ज्यादा आगे तक क्या लेके जाएगा? आपकी भक्ति, राइट। तो ओपुलेंस होना इज नॉट बैड, वी कैन बी ओपुलेंट एंड वी कैन शो दैट, बट अगर हम बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टास्क ले लेंगे तो कहीं ना कहीं कृष्णा पीछे छूट जाता है, और वो टास्क इतना बड़ा लगने लग जाता है, और वही हमारा सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अगर आप हमारे शास्त्र भी उठा के देख लो, कोई, ऑल डिवोटीज आर वेरी सिंपल डिवोटीज, मैक्सिमम। ठीक है, जैसे वो थी विदुर की वाइफ वॉज सिंपल डिवोटी, राइट। पुअर एंड सिंपल, वो केले के छिलके खिला रही है वो भगवान को, वो खा रहे हैं। सुदामा, अगेन वेरी सिंपल मैन, क्या लेके आया भगवान के लिए? चावल, फ्लैटन राइस लेके आया, चिड़वा लेके आया भगवान के लिए। सोच सकते हो, बिलनी, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि, और भगवान को वो सिंपल लोग ही पसंद हैं, उनको वो शोई लोग नहीं पसंद। दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज आल्सो राइटिंग, राइट। दैट इज व्हाई he's written na, the simplicity of acceptance of Lord's authority is more effective, that is more effective, right. तो तो भक्ति है जो हमें भक्ति वृक्षा में रखती है, और अटैचमेंट टू कृष्णा जो है वो हमें भक्ति भक्ति वृक्षा में रखता है, ना कि और कोई चीजें, राइट। और अगर मोटिवेटेड चीजें हैं तो वो थोड़ी देर के लिए रहेंगी, पर जैसी वो मोटिवेशन खत्म होगी, साथ ही वो चीज भी चली जाएगी। तो इसलिए भक्ति इज इम्पोर्टेंट। तो और जगन्नाथ राम प्रभु ये भी बोलते थे अपनी क्लासेस में, काफी बार बोलते हैं कि वी बिकम, समटाइम्स वी बिकम टू मच टास्क ओरिएंटेड। हमें लगता है कि ये काम भगवान की सर्विस कर रहे हैं हम, तो हम टास्क में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वी वी डोंट बिकम वी डोंट रिमेन पीपल ओरिएंटेड, वेयर एज कृष्णा इज भावग्रही जनार्दन। वो टास्क हुआ है नहीं हुआ, डज नॉट मैटर as long as we tried, we did our endeavor, that's it। बट इन द एंड, अभी ये चैतन्य चंद्र प्रभु भी मंदिर में जब आए थे, उन्होंने भी ये क्लास में दिया था ना कि देन रिजेंटमेंट स्टार्ट्स हैपनिंग। किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि प्रभु इतनी सर्विस करने के बाद हमें रिजेंटमेंट होने लग जाती है। वो बोलते हैं क्योंकि आफ्टर डूइंग द सर्विस वी सीक के यार, अच्छा हाँ बहुत अच्छा काम किया आपने। जब वो नहीं मिलती, तब बंदे को लगता है यार, वाई 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 वॉज आई डूइंग दिस, व्हाट वाज द पॉइंट, बिकॉज हम भूल गए, कहीं ना कहीं हम अलोंग द वे हम भूल गए कि भाई हम कर किसके लिए रहे थे। हम कृष्णा के लिए कर रहे थे, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे थे। वो क्रिकेट वाली एग्जांपल सुनाई थी ना प्रभु ने भी पहले पहले, कि वो क्रिकेट खेलते हैं बंदे, बच्चे, तो बाद में उनको लगता है, बंदा आता है, याद है ना वो एग्जांपल जो दी थी, नहीं याद? बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं मोहल्ले में, तो वो शीशे शीशे तोड़ रहे होते हैं, सब लोग उनको हटाते हैं, वो नहीं हटते। तो एक बंदा जाता है, वो बोलता है कि अच्छा रुको। वो जाके ना उनको बोलता है कि वाह यार तुम क्या क्रिकेट खेल रहे हो, ये लो 50-50 रुपए, जाके आइसक्रीम खाओ। बच्चे बड़े खुश हुए। नेक्स्ट डे फिर आता है, वो 100-100 रुपए देके जाता है कि यार बड़ा अच्छा तुम खेल रहे हो यार, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तुम्हारा खेल देख के। तो तीसरे दिन भी आया, ऐसे थोड़ी देर चला, तो थोड़ी दिनों बाद ना उसने पैसे नहीं दिए। तो वो बोल रहे हैं, कहते बच्चे बोल रहे हैं, कहते क्यों, पैसे निकाल, फ्री में मैच देख रहे हैं यहाँ पे हमारा बैठ के। कहता नहीं, पैसे तो नहीं दूंगा मैं। कहते अच्छा पैसे नहीं देगा, हम नहीं खेलते यहाँ पे। वो खुद छोड़, मोहल्ला छोड़ के चले जाते हैं, कहीं और खेलते हैं। बेसिकली वो भूल ही जाते हैं कि हम क्रिकेट तो अपने मनोरंजन के लिए खेल रहे थे, अपनी मजे के लिए खेल रहे थे, इसके पैसों के लिए थोड़े ना खेल रहे थे। तो वो चीज है, हम कहीं ना कहीं भक्ति में आके ये भूल ही जाते हैं कि हम भक्ति में आए क्यों थे भाई। कृष्णा को प्लीज करने के लिए आए थे, ये शोई के लिए नहीं आए थे, नॉट फॉर शोशेबाजी, राइट। सो दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग हियर, Prabhupada is saying here. All right, so I think we'll stop here. Next verse is very
Beautiful. Krishnaya Vasudevaya. We'll do it next time. All right. So we'll stop here and we'll see if anyone has any questions, comments. कुछ ऐड करना चाहूंगा प्रभु। हाँ जी प्लीज प्रभु। मैंने आज टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य आई रेड 12th chapter, the devotee. Very nice chapter it is. Everybody should read this book. And in this chapter, Lord Chaitanya mentioning about like 39 qualities of a devotee. And out of them, the last 5 are, they said, most important. And it mentioned in the book that if you only follow one of them, you can be successful in your bhakti. Wow. And they are very simple. We do that every day, but we have to just focus on them more. I will read them. Number 1, to associate with devotees, to chant holy name of the Lord, to hear Srimad Bhagavatam, to live in a holy place such as Mathura or Vrindavan, and to serve the deities with great devotion. They all very straightforward things we do every day. Correct. And these are the most important thing according to Lord Chaitanya also. Very nice chapter, very nice book. इसको हम ABCD से याद रख सकते हैं। Okay. बड़ा आसान तरीका है। A is association of devotees, B is Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, C is chanting, D is deity worship. Okay. And then is Mathura Vas. Last Yes, is Vas. एक और सेल्फ रियलाइजेशन मैं अभी शेयर करूंगा। आपकी मदर की बात पे मुझे याद आया। अभी लास्ट वीक स्वाति, my wife's sister, she had a baby, premature baby. Okay. So I was doing my chanting in front of altar early morning around 5:30. Swati came and said she got a call from India that her sister is very serious and she had immune problem and kidney stop working, body inflammation problem. And I said, okay, you can't believe I just said to Krishna that Krishna, please look after her, save her, because she only have 2-3 days old baby. She need to survive. And in couple of days, all results are okay. She's back to normal. See, Krishna listens. Exactly. This just is miracles happen. हमें लगता है कि कृष्णा प्रेयर्स नहीं सुन रहे हैं, बट ही लिसन्स और वो आपकी डिजायर्स भी नोट डाउन कर रहे हैं और आपकी प्रेयर्स भी सुन रहे हैं। वेरी क्लोजली ही इज वाचिंग अस। वो आज का था ना, वो राहुल प्रभु ने शेयर करते हैं जो डेली डेली उनका जो थॉट ऑफ द डे कि कृष्णा इज कीपिंग separate ledger for all the devotees. All the devotees. Correct, where he is keeping record of you guys, and how then how that's where he decide what to do with each devotee separately. Correct. Personal reciprocation. Correct. Thank you for the nice class, Prabhuji. Thank you. All right then, we'll stop. ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, आदि की जय। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। मंडे वापस मिलेंगे। हाँ जी। थैंक यू प्रभु जी। ओके जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन।